time pass हो जाएगा. Yeah, absolutely. Yeah, I'll try. Try and teach them how to log in on the Android. If you're talking to them on WhatsApp, उनके पास network तो है ना, data होगा ना. Yeah. So just try and teach them, it will help. Namaskar Ravindran ji. Sampada, Vinitha. Yes, Nina, tell me. Good morning. Namaskar, madam. Namaskar. Namaskar. नीना जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? No, this is my time. I'm just waiting for this session to start. Okay, you were saying hello with your hand. Okay, good. So this is how we learn, you know. वो reaction button है वहाँ पे अलग-अलग चीज है. तालियां हैं. There is a thumbs up. There is a smile. There is a surprise. There is a heart. There is a celebration. और raised hand जब होता है, तो when you do this raised hand, that means I have to say something, and then we will lower your hand and we will allow you to speak. So welcome, good morning, and we will get started and let people keep coming. And just give me a minute, I will make sure the link is posted. Yes. So let's welcome, this is a platform for older adults, by older adults, and of older adults. Our mission is to create economic opportunities for all of us, whereby we learn new skills, be it technical or any other kind of skill, which is required to stay connected, and also it helps us live a happier and better life. We have classes across technology, health and wellness. We also have fitness related sessions. We bring to you singing, dancing, hobby ideas, and also invite guest speakers who talk to you on different topics where they are supposedly the subject matter experts. Keep checking for different topics at different time slots, and register as per your convenience and your comfort at www.getsetup.in. That's the site. And if when you register, we encourage you to register on the site, because then you are sure to get a confirmation mail, and also you will get a link in your WhatsApp, personal WhatsApp. So you will not miss out anything. If you know others who can help, who can be benefited by these sessions, please help them by sharing the link that you can, or invite them to join this session, and they can register and enjoy the same. Let us know if you have any ideas that we can bring to you, any new suggestions that you want to make, which is going to help you and others. We will be more than happy to bring that to you. Get Set Up, as you know, we are educators and a training organization. We do not sell anything or receive any kickbacks from any organization. We do not promote any product or services here. We are recording this session for the purpose of training, and also at times our participants request for this link. You will receive an email with some pointers of the session that will help you to recap what you learned in the session. The chat box is available. Feel free to use the chat box, because that is where you can add your comments while I'm talking. You may not want to disturb me, distract me, because if I'm speaking, I would prefer to complete that one topic that I'm talking on. So please feel free to put your comments in the chat box. I will be reading that. I have my colleague Preeti here. She will help us out also. In case you want to speak, just raise your hand, unmute yourself, and we can take it. So good morning and welcome once again. For some of you who are new, my name is Binda and I am in Mumbai. And I come with the background of more than 3 decades of corporate exposure. And for the last 10 years, I have been into facilitated training, and I'm also a wellness coach. By passion, I have been practicing, and of course, I don't say teaching, हम लोग सेवा देते हैं, into the field of yoga,
and that's been for more than 28 years now. So happy to share whatever little I know. And of course, this is an interactive platform. All of you come with a lot of experience, and during the interaction, we get to learn from each other also. But when we are discussing things, let's be a little mindful of ensuring that we cover the topics that we are here for, because कभी कभी क्या होता है, हम लोग I encourage to talk, yes, but थोड़ा सा अगर टॉपिक से हट जाता है तो जो विषय हम कवर करना चाहते हैं वो रह जाते हैं. So we'll just be a little careful about that. We're going to talk about the Shata Karma. योगा में यहाँ पे कितने लोग हैं जो योग का अभ्यास करते हैं? Those who are doing some amount of yoga. Ravindran, yes. Not, yeah, Shubha ji. So not necessarily everything we should be doing, but उसके अष्टांग योग हैं, 8 पहलू हैं. यम नियम आसन, धारणा ध्यान समाधि, प्राणायाम प्रत्याहार. तो हम लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक करते हैं. धारणा ध्यान समाधि में कुछ अंश तक हम लोग करते हैं, बिकॉज ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग हम लोग जो हैं, वी आर नॉट, that's why they say when you have to reach that stage of pranayam, जो प्राणायाम सीखते हैं उनको यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है. बट हम लोग यम नियम का पालन नहीं करते हैं और सिर्फ आसन करने शुरू कर देते हैं, और आसन के साथ साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, और फिर हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं प्राणायाम करता हूँ या मैं प्राणायाम करती हूँ. बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय गुरु and what I have been doing all these years, जब तक आप अपने आप में यम और नियम का पालन नहीं करते हो, तब तक आपका शरीर और आपका मन प्राणायाम के लिए तैयार नहीं होता है. इसके लिए very loosely that we use the words प्राणायाम करते हैं, actually वो सही नहीं है. Yeah, we are doing the breathing techniques जो basic है, जो elementary है. प्राणायाम तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है. We are going to look at today the Shata Karma Kriya. Shata Karma, as the name suggests, it is the purification process that we are, Shata yani 6, शुद्धि क्रिया के ये प्रकार हैं. तो हमारी आंतरिक, बाह्य शुद्धिक and आंतरिक शुद्धिक. Now, when we have to cleanse our body from outside, we can scrub, we can use the soap, we can use the scrubber, shampoo, whatever. कपड़े पहनने हैं तो धुले हुए कपड़े साफ सुथरे पहने. But what do you do for when you have to do your cleansing internally? जब हम आंतरिक शुद्धि करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो योग शास्त्र में बहुत सुंदर ये 6 purification क्रियाएं बताई हैं. I was just writing something here for sharing it with you. We'll be talking about 6 types of the purification process. We will understand how these process are done. उसके टेक्निक्स होते हैं तो हम देखेंगे. 1 या 2 मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसका अवेयरनेस के लिए बता दूंगी. We will also look at the benefits of these kriya and after understanding the process. Okay, so let's look at what is it that we are going to cover in the session today. ये जो 6 क्रियाएं हैं, it is shown in the slide, so which will help you to see. नेति is the first one. नेति धोती बस्ती, नौली कपाल भाती त्राटक. ये 6 हमारे क्लेंजिंग टेक्निक्स हैं. नेति में हम लोग जो हमारा अपर नेजल ट्रैक है उसका क्लेंजिंग होता है. धोती में हमारा इंटेस्टाइन, अवर लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको साफ होके निकलता है. And basti is something I will just talk about it a little so that you know what it is. But this is supposed to be done at a retreat center या जो पंचकर्म क्रिया जहाँ कराते हैं वहाँ करते हैं. But जानकारी के लिए I will tell you what it is. Nauli again. Nauli is the abdominal muscles. उसको हम मसाज देते हैं.
वो भी जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग बहुत सालों से योगा कर रहे हैं और जिनका शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया, and they can only do this thing. You and I used to do it years back, but for the last several years, I haven't kept the consistency in practicing Nauli. So I do not try to do that. Maybe Madhya Nauli मैं कभी कभी कर लेती हूँ, but वाम और दक्षिण नौली जिसको घुमाते हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ. Kapalbhati, yes, I do it every day regularly. All of us can do it. Tratak also is something all of us can do. So Neti, Kapalbhati, Tratak are the three karmas or kriyas जो हम लोग सभी जानकारी के बाद, once you understand how it is to be done, we can put it in our daily routine. Neti, Kapalbhati and Tratak. Dhoti is something we will understand how it is to be done. If you're doing it for the first time or after a gap of 6 months and 1 year, you have to do it for at least 10 to 15 days at a stretch. Every day 10 to 15 days. उसके बाद आपको pause लेना है, break लेना है. फिर जब दूसरी बार करोगे तो 3 days, 3 consequent days. ऐसा नहीं कि आज कर लिया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर 6वें दिन कर लिया, फिर 2 दिन नहीं किया, फिर 10वें दिन किया, नहीं. आज अगर मैं शुरू कर रही हूँ तो मैं 10 दिन के लिए लगातार करूंगी, तभी मुझे फायदा दिखेगा. Then I take a break. And next time when I feel that I think I'm uncomfortable, I need to do dhoti, then I will do it for Friday, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday, Monday. ऐसे 3 लगातार दिन करें. Again, take a break of 1 month. Everybody can do that. I will tell you who can't do, who cannot do, but once you start doing, everybody can do that once in a month for 3 days. हाइपर एसिडिटी जिनको है, मैं उसकी बताऊंगी कैसे करना है. जिनको हाइपर एसिडिटी है वो लोग शुरू में 15 दिन में 3 बार करेंगे, बाद में धीरे धीरे 1 महीने में 3 बार करेंगे. So let's go and see what are these kriyas, what are these. Yeah, so कैसे करते हैं इनको जरा जान लेंगे. Now, नेति, जैसे राइट साइड में थोड़े पिक्चर्स मैंने इमेजेस निकाल के दिखाए हैं. It's just downloaded images, so explaining it to you. अब नेति ये सज्जन बैठ के कर रहे हैं. हाँ, बैठ के भी ऐसे कर सकते हैं, because when we show demonstration in the class, yes, we actually show it. टब रखते हैं और हम लोग दिखाते हैं. यहाँ तो because I'm doing alone by myself, I cannot possibly show you the demonstration, but I'll tell you how it is done. धोती, now this person is doing the वस्त्र धोती. हमें वस्त्र धोती नहीं करनी है, हम वस्त्र धोती नहीं करने वाले हैं. But when I talk about वस्त्र धोती, I will tell you that ऐसे मलमल का एक, आपको कैमरा नहीं दिख रहा होगा, बाद में दिखाऊंगी because I'm sharing the slide. हम लोग जो धोती करेंगे बताएंगे वो जल धोती है. ओके, जल धोती, वाग धोती, वस्त्र धोती, 3 तरह की धोती है. हम लोग जल धोती की बताएंगे और जल धोती करेंगे. नौली देखिए, वो सज्जन जो झुक के खड़े हैं, he is showing the मध्य नौली. His intestines have all abdominal muscles have all collected at one place, so वो है मध्य नौली. And then when he starts churning, उसको हम वाम और दक्षिण, लेफ्ट एंड राइट में हम लोग जो चर्न करते हैं, वाम नौली दक्षिण नौली करके उसको लिटरली, और फिर मध्य में आके उसका मंथन भी करते हैं. एक्चुअली वो घूमता है, घुमा सकते हैं. बस्ती इज समथिंग अगेन cleansing of our rectum area and our bowel systems. वो हम यहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन हम बताएंगे आपको. कपालभाति जरूर बताएंगे, त्राटक भी बताएंगे. Now on the left hand side, this image is showing you. त्राटक में हम क्या करते हैं? We gaze at one point until our eyes water. धौती में we are swallowing water and bringing out the water. Okay, उससे हमारा वात, पित्त और कफ बैलेंस होने में मदद मिलती है. कपालभाति, फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा क्लियर होने के लिए वी हैव टू डू द ब्रीदिंग रैपिडली. हमको शैलो ब्रीदिंग करना है. वी विल बी एक्सप्लेनिंग व्हेन वी आर गोइंग टू डू दैट. नेति, वी एक पैसेज से पानी डाल के दूसरे पैसेज से निकलेगा, एक तरफ के नोस्ट्रिल से पानी डाल के दूसरे, तो उससे क्या होता है, पूरा हमारा जो अपर नेस्ट्रल ट्रैक है वो क्लियर हो जाता है, हमारा रेस्पिरेशन अच्छा होने लगता है. Nauli, as I said, you rotate the abdominal muscle. All right. So here I will stop sharing the screen
And now I will be telling you how these kriyas are done. I will just take a pause of 1 or 2 minutes and understand from people who are here, any one of you have experienced or are practicing these kriyas or any of these kriyas. Please unmute yourself. Yes, Vinita ma'am, ji? I do nasal neti because I was having severe this nasal problem. Most of the time I used to have cough and cold, and since last 7-8 years I'm doing nasal neti, water neti, and it's a miraculous cure. I got it. Very good. Thank you for sharing, Vinita. Yes, I have, in the last 28 years, I have known hundreds and hundreds of cases who have actually, even sinusitis वालों को जिनको वो हड्डी बढ़ जाती है, ऑपरेशन करने को कहा जाता है, because these are the people who, जिनको साइनस है उनको मालूम है सिर भी नीचे करके काम करते हैं तो ये पूरा भारी हो जाता है. Yes, ma'am. Actually, my operation too was done, but that just served for few months. After that, again, I started sneezing and a severe form of cough and cold. But now, Yes. from years, I am totally free from all these. Thank you so much, Vanita, for sharing. The next thing I was going to say the same thing कि हड्डी बढ़ जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कीजिए, but that is not the permanent cure because वो फिर से आ जाता है. But यहाँ जो नेति करते हैं, I will show you. I won't show you. I'll explain to you the सूत्र नेति also. तो जिनकी हड्डी बढ़ जाती है हम उनको सूत्र नेति करके मैं करती हूँ, लेकिन again as I said I'm not going to show them here. बट वो करने से वो पूरी हड्डी उनकी लेवल में आ जाती है, बिकॉज अंदर की जो हड्डी होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है, तो उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है. So thank you once again. Anybody else other than the Kapalbhati, anyone else is practicing Kapalbhati, Tratak, Neti? Okay, so that means आप में से काफी लोग पहली बार इसके बारे में जानकारी लेंगे या कुछ हद तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आप आज और कुछ उसके बारे में जाने. मोहना जी कुछ कहना चाहती हैं? I had done Tratak, madam. So आंख में से पानी I used to get, and this Kapalbhati I do it weekly thrice. I do it Kapalbhati. Okay. Yes, so Tratak also every day you can do. We will understand how it is to be done. Okay, let's move on. And all of you, those who want to come on the video, please feel free to come there unless you are feeling uncomfortable or you have a bandwidth problem. So thank you, Bina. And we have Meena, Lirette. Good morning, Binda. Good morning. We have Anjula, Sujata, Neeta ji. Good morning, Neeta ji. Pankaj ji, good morning. And yeah, so let's understand what we'll start with Neti, Dhoti, Basti, and Tratak. हम जो कराएंगे वो मैं लास्ट में रखती हूँ ताकि it becomes easy for you people to. नेति मैं कराऊंगी नहीं, बट मैं उसका एक्सप्लेन कराऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे हम लोग करते हैं उसको. ओके, सो पॉट होता है क्लिनजिंग पॉट, उसका एक ना पॉट होता है नेति. ये तो मैंने वो नेति वाला पॉट नहीं लाया है. सो इस तरह उसका एक स्पाउट होता है. हमें क्या करना है, दिस क्लेंजिंग टेक्निक एक्चुअली इज बेस्ड टू क्लीन द नेजल ब्लॉकेजेस. जैसे अभी our friend just share, Vinita shared it also. करती हैं तो उनको बहुत फायदा हुआ है, and she's also gone through the operation surgery. So this process is intended to purify all our passage here, and it also अगर infection कुछ है वगैरह तो हमें क्या करना है, गरम गुनगुना पानी. You must take a glass of lukewarm water. A glass is good enough. Half a glass can go into the pot for one nostril and keep the rest of the glass, half the glass, for the second round when you're going to do it with the other nostril. क्या करना है, हमें ग्लास में गुनगुना पानी रखना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है, 1 teaspoon, not heaped teaspoon, just 1 teaspoon salt डालना है. Salt because it is antiseptic also. So समझो आपको कोई खरोच आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो it just helps to heal. It can be performed in
there are 3 different types. नेति में जल नेति है, सूत्र नेति है, और हम लोग अलग प्रकार की नेति ग्लास में पानी लेके नाक से पानी खींचते हैं, मुंह से पानी निकालते हैं, मुंह से पानी पीते हैं, नाक से पानी निकालते हैं. ये अलग तरीके के, अगेन दैट इज एडवांस, इट कम्स विद प्रैक्टिस. So for you and me, I mean, I've been doing all 3, but for you people, because we are showing in the virtual platform also, and even otherwise, if it was a physical classroom, we would have demonstrated the other 2, but we do not encourage unless it is a patient who has that surgery, to be advised surgery and thing, then we get them to do the Sutra Neti under observation, under our guidance. कैसे करोगे? सबसे पहले ये तो सुबह सुबह करना है. जिन लोगों को बहुत सारा साइनस का प्रॉब्लम है, वो लोग शाम को भी कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं. How do you do it? Take a glass of lukewarm water, put salt in it, fill up this pot. Now the pot will be full until the spout, and then you have to stand at the wash basin, or if you are in the bathroom, you will just bend a little, but listen to the instructions. 5 things to be kept in mind. Hold the pot full of water. You will be standing straight. Important to be mentally relaxed. Anything that you do in yoga or any breathing techniques or any kriya, सबसे पहले मानसिक स्थिति आपकी रिलैक्स होनी चाहिए. शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनी काइंड ऑफ क्रिया, बिकॉज आप अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो क्या आपके मसल्स आर टेंस, यू आर अ लिटिल हेजिटेंट, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, सो देयर आर सो मेनी डाउट्स इन योर माइंड, तो आपकी क्रिया ठीक से नहीं होती. सो बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द क्रिया, टेल योरसेल्फ, this is the kriya I'm going to do because it is going to help me to improve my respiratory tract. And that is why it is a tried and tested, हजारों सालों से ये चल रहा है, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है. So what are the 5 things you have to remember? The lukewarm water. When you are standing, hold your hand this way, and you will be putting the water from the right nostril, and the water will be coming from the left nostril. That means both your nostrils are blocked because यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है. So breathing तो आपको करना है, तो आपका मुंह खुला रहेगा. अब क्या होगा? Number 2, you're holding the pot like this. Number 3, as you put the spout inside your nostril, your hand will move, get lifted from your right hand, थोड़ा सा एल्बो से आप उठाएंगे, और वैसे ही आपकी गर्दन आगे की तरफ थोड़ी सी झुकने लगेगी. You will actually feel that drop of hot, warm water trickling inside your nostril and finding a passage. It will start coming out. Because थोड़ा सा आपको तब तक हल्का रखना है जब तक आप महसूस करें कि एक बूंद गया, वो जा रहा है अंदर और अभी यहाँ से निकल गया, तो आपका ये हाथ थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, because that means it has got the flow, and you will actually see the water in a flow coming down. एक धार से वो आप पानी को देखोगे, और जब तक पॉट का पानी खत्म नहीं हो जाता है, आप हाथ ऊंचा करते रहोगे, गर्दन आपकी झुकी हुई है. आपको एक बार आपको जो वो कैनल पैसेज मिल गया, then you don't have to still bend your head. You have to maintain your head position. Only your hand will move. आप गर्दन और झुकाओगे तो पानी ऊपर जाने की संभावना है. So you are bending your head only to give that passage, only to give that direction. एक बार वो डायरेक्शन मिल गया, आपको दिख रहा है कि पानी यहाँ से निकल रहा है, तो then you have to only lift your hand so that the whole pot gets emptied in a rhythmic way, and the whole pot of water will come out from the thing. So that was the third. Fourth में क्या करना है? राइट साइड की नोस्ट्रिल से आपने पानी भरा है, यहां से निकल रहा था, तो जिसको ब्लॉक करके स्निफ इट आउट, स्निफ करो, पानी अगर बचा है तो निकल जाएगा. प्रेस द अदर साइड ऑल्सो. नाउ यहां से पानी डाला था, यहां भी हो सकता है बचा है, सो होल्ड इट हियर, स्निफ करो 4-5 बार, दोनों बार हो गया. इफ यू फील कि यहाँ पानी गया है, आपका थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन अगर हुआ है, lift your head up and drop your head down and sniff 2, 3, 5 times. पानी अगर बचा कुछ है वो निकल जाएगा.
So these are the 5 things you have to remember when you are doing your nasal. Second pot bhar ke, same thing you have to repeat. Hold it straight, put the spout in your nostril, and bend forward, lifting your left hand upwards. As soon as you find the passage and the water trickling down, lift your hand without further bending your head. That is how the whole water pot will get empty. Don't forget to sniff the remnant waters, droplets by sniffing it out. अब किसने किसने करना है? सभी लोग इसको कर सकते हैं. हाँ, जिनका नोज सर्दी जुकाम के कारण ब्लॉक है नोज नॉस्ट्रिल, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी. अगर वो सपोजिंग मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, तो अगर इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊंचा उठा लूंगी मैं, तो ये खुल जाता है. सो इट कैन कम. या anybody else, anyone has any question? Everybody can do this. कोई दिक्कत नहीं. Anyone? Now don't, because you have learned it, don't catch hold of your 5-year-old grandchild and make him or her do it. Okay? This is for you. You have to do it, and you have to see what are the benefits that you are getting. So some of the yogic kriyas, do not try to preach to others. Some things you can tell others to do it. जैसे त्राटक है, आप जब त्राटक करोगे उसमें मैं बताऊंगी कि आप में आपके घर वाले भी कर सकते हैं. बट कपाल भाती है, तो जब तक आप अच्छी तरह से नहीं करोगे, आप सिखाने मत जाओ. बिकॉज योगा जैसे तारक होता है, वैसे मारक भी होता है. So if you have not learnt it properly, or you are not doing it properly, you are passing that incorrect method to another person. So do not do that. Do not. उनको यहाँ बुलाइए, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाइए. Learn through proper guidance. Understand through proper guidance. Okay. If you have any questions, for Neti, just quickly ask me before I move on to the next one, because मैंने देखा है मेरे सेशंस में काफी समय चला जाता है. तो I want to go to the Kapal Bhati and then Tratak. Before the other two, I will just touch. Ma'am, I would like to add one point, if you allow me. Yes. Where I learned this technique, they asked me to just put 1 drop of pure ghee. If Ghee. it's cow ghee, that's much better. Otherwise, the normal ghee in total liquid form in each nostrils after doing neti, because the salt somewhat dries up the inside, which when we put oil or ghee in it, it lubricates the inner. Just Right. 1 drop, put over your finger and put it in both nostrils. Right. So that is also a nice thing. We tell this for people who are having the sinusitis. उनको हम खास करके बताते हैं, और उनको जब हम बताते हैं, because this is the sutra. Thank you for sharing that. But on regular basis, we do not advise that. But it's not there's no harm in doing that, because yes, salt can dry up the. Now this is the catheter. Okay, ये catheter है. ये chemist की दुकान. Again, this is only for information I'm showing you. Do not try this unless you are doing it under guidance of somebody. Okay, ये हम लोग जिनकी वो हड्डी बड़ी होती है उनके लिए बताते हैं. Otherwise, for other people, Jalaneti will give you all the benefit. You don't have to do this. अब जब हम catheter का बताते हैं, इसको हम बताते हैं, we lubricate it, we keep it soaked in water to become soft. Then before we try it, before we apply the process, before we try the process, we apply little ghee on this. And this is the point जो हम धीरे से right nostril से धीरे धीरे डालेंगे, and we let it come. जो passage मैंने बताया, आपका जो पानी का बूंद जैसे यहाँ से cavity से निकलेगा, ऐसे we find the cavity and we then start pushing it further. And उसका जब ये end यहाँ से निकल जाता है, then we pull it, and then we actually, it stays from inside, and we then slowly massage it very tenderly. We massage, and that's why lubricating it is important, because वो lubricant होता है तो massaging के लिए easy होता है. And then we literally pull it out, put it from the right nostril and pull it out from the left nostril. इसको हम लोग सूत्र नेति बोलते हैं.
ये मैं करती हूँ, मतलब दिखाने के लिए करती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, but when I'm teaching this, I do it and show it to the people, and only for those who are supposed to be doing this. Okay. Now, yeah, so we will now move forward, and I'm going to talk about the dhoti, jal dhoti, वाग धोती एंड वस्त्र धोती. वाग धोती के बारे में मैं बताऊंगी, वस्त्र धोती मैं सिर्फ उसको रिफर करूंगी. सो व्हाट इज जल धोती? ऑल ऑफ अस हैव वात, पित्त एंड कफ इन आवर बॉडी. ये जो त्रिदोष हैं वो हमारे शरीर में है. इनका संतुलन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ इट हैज टू बी इन बैलेंस्ड लेवल, एट बैलेंस लेवल इन आवर बॉडी. इनमें से एक भी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर के जो एलिमेंट्स हैं, जो तकलीफ है, वो बढ़ने लगती है. सो अगर वात बढ़ जाता है तो देयर आर सम फिजिकल एलिमेंट्स दैट स्टार्ट्स ट्रिगरिंग ऑफ. पित्त बढ़ जाता है, सम फिजिकल एंड मेंटल इलनेस स्टार्ट ट्रिगरिंग. और उसी तरह से वात बढ़ जाता है, वात पित्त और कफ बढ़ जाता है, तो उस तरह से होता है. तो इनको बैलेंस कैसा करें? और हमारे सबके शरीर में ये है ही, और ये इम्बैलेंस भी है, इसीलिए हमें कोई ना कोई तकलीफ होती है. ओके, तो उसको भी बैलेंस कैसे करना है? सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट, लिटरली जैसे धोती, इसका मीनिंग क्या है? वॉशिंग. तो वी आर गोइंग टू वॉश द different, it's a technique we are using the water, and it's going to be washed out. Now शंख प्रक्षालन जो क्रिया है, उसमें हम मुंह से पानी लेके रेक्टम से हमारा एनल से निकल जाता है. बट धोती में हम मुंह से पानी लेके हम हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको क्लीन करेंगे, और उसको पानी को हम मुंह से ही फ्लश आउट करेंगे. ओके. कभी कभी आपने सुना होगा कि पेट खराब है, बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है. व्हाट डू? दे फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट द rice tube and flush out whatever is in the stomach. They just cleanse it. Okay. तो इसके लिए हमारे जो पेट में इंटरनल, मतलब फूड पार्टिकल्स, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वगैरह बचे हुए हैं, जो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, उसको हमें साफ करना होता है. This cleansing technique performs the process of alimentary canal, and हमारा ह्यूमन बॉडी का जो है वो thoroughly clean हो जाता है. इसोफेगस से लेके, माउथ से लेके स्टमक, इंटेस्टाइन, और ये सब निकल जाता है. ओके. कैसा करना है इसको? अगेन पानी की जरूरत है. यहाँ पे हम पानी, एक पतीला, एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water, boil it the previous night and let it rest, so that उसमें अगर impurities हैं वो नीचे थम जाएंगी. मॉर्निंग में just heat it a little so that it becomes lukewarm, क्योंकि हमें उबला हुआ पानी नहीं पीना है. We want to drink the lukewarm water. Okay. So उसमें भी अभी, now when you are ready, you have to get first thing in the morning करना है. ये कैसे करना है ये समझ लीजिए, बाद में मैं बताऊंगी कौन करेगा कौन नहीं करेगा. So पहले ये पानी को गर्म करके हमने रेडी रख लिया. You can fill up that water in a big jug if you have, and sit with a glass and jug, or you can keep that whole vessel with you down, and you can do it. Now how are you going to sit? I would now here, because most of them are 55 plus, I am not sure if all of you can sit on the floor like खो-खो जब हम लोग खेलते हैं, उसको कागासन बोलते हैं. उस स्थिति में आप बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. नहीं बैठ सकते हो तो if you're sitting on the chair, you can just lift one leg up and put the foot on the chair so that your knee comes closer to your stomach. आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नी के बाहर से लेके ग्लास को आपके हाथ में पकड़ लेना है. आपका जग यहाँ पे है, उसमें से आपने ग्लास में पानी डाला, हाँ उसमें नमक डालना है. Put at least 1.5 spoon or 2 spoons of salt, or take a nice heaped teaspoon of salt and put it in the water. Saline water पीना है, and एक एक ग्लास आप पीते जाएंगे. Now sip sip करके नहीं पीना है, और गट गट करके भी नहीं पीना है. You're not drinking for thirst. You're drinking because you're going to do this process of cleansing your digestive tract. तो हम 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, कुछ लोगों के 4 ग्लास तक आकंठ पानी भर जाएगा. कुछ लोगों को डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ग्लास और डिपेंडिंग ऑन द
डिहाइड्रेशन इन योर बॉडी 4 या 5 लगेगा। तो इतना पीना है until it is आकंठ, एक भी बूंद और नहीं पी सकते हो, आपको महसूस होगा। उसके बाद आप वॉश बेसिन के पास जाओगे और ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं उससे आप मुंह में डाल के बेस ऑफ योर टंग, जबान की जो बेस है थ्रोट के पास, उसको प्रेस करोगे। जैसे ही प्रेस करोगे, क्योंकि आकंठ पानी पिया है आपने, जैसे ही प्रेस करोगे पानी आपका बाहर आएगा। सम ऑफ यू, आपको फिर से हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम ऑफ यू मे हैव टू डू इट 2 or 3 times more, बिकॉज आपको महसूस हो रहा है कि पानी और है और निकल सकता है। आकंठ पीना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कम पियोगे आपको लगेगा नहीं मैंने 4 ग्लास तो पी लिया, मैं निकाल लूंगी। तो क्या होगा, when you're putting that pressure, for to bring that water out, you're exerting a lot more pressure. फिर यहाँ पे बाद में आपको छाती में थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। That's why remember the tips that I'm giving you, 5 things, I'll repeat them. तो वो करना है। अब पानी निकल गया, आपको लगेगा मैंने तो 5 ग्लास पानी पिया, लेकिन शायद 2 या 3 ग्लास ही निकला है। डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज खाली पानी पिया है और नमक वाला पानी पिया है। सो अगर पूरा नहीं निकला है तो आपके स्टूल्स के द्वारा निकलेगा, आपके यूरिन के द्वारा निकलेगा। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स। एंड देन लास्ट में थोड़ा सा पानी लेके आपको 3-4 बार गार्गल करना है। गार्गल इसलिए करना है बिकॉज जब आप पानी निकाल रहे हो, वात, पित्त और कफ, डिपेंडिंग ऑन द kind of pravriti that you have, prakriti that you have, that's the kind of water which is going to come out. If you have कफ प्रवृत्ति का आपका शरीर है तो थोड़ा चिकना पानी निकलेगा, slimy water will come out. पित्त प्रवृत्ति का आपका है अगर शरीर, तो थोड़ा सा खट्टा, कड़वा, डिस्कलर्ड ऐसा पानी निकलेगा। और अगर आपका वात प्रवृत्ति का शरीर है तो आपका जब पानी निकलेगा थोड़ा सा हल्का, शायद उसमें ओपेक कलर, व्हाइटिश कलर का होगा। व्हाइट मतलब मिल्की व्हाइट मत समझो, थोड़ा सा अनक्लियर होगा और शायद थोड़ा झाग वाला होगा, थोड़ा उसमें बबल्स टाइप दिखेंगे। व्हेन आई से झाग वाला, डोंट इमेजिन द सोप वाटर एंड सोप का झाग निकल, इतना नहीं होगा, बट थोड़ा सा फ्रॉथी होगा। दैट इज फॉर वात। स्लाइमी होगा फॉर कफ प्रवृत्ति, और डिस्कलर्ड एंड बिटरिश होगा फॉर द पित्त प्रवृत्ति। तो ये बताना जरूरी है, क्योंकि जब आपका निकलेगा तो आपको लगेगा ये क्या निकल रहा है। नाउ डोंट गेट अलार्म्ड, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, ये सब आपके अंदर का ही कचरा निकल रहा है। All the toxins that is lying inside your body is coming out. So don't feel disgusted. So imagine कितना कूड़ा अंदर है, कितना गंदगी अंदर है, उसे हम बाहर निकाल रहे हैं। When you do it for the first time, do it 10 days consequently. You will actually start feeling lighter. You may not physically look thinner or something. आपका शरीर हल्का महसूस होगा, आप ज्यादा स्फूर्ति महसूस करेंगे। You'll feel more energetic to do things. आपका, जिनको भूख कम लगती है उनको भूख ठीक लगेगी, जिनको भूख ज्यादा लगती है उनको फिर मतलब लिटिल बैलेंस इट आउट। आप कुछ लोगों को ज्यादा खाने की इच्छा होती है, इसलिए हम लोग ज्यादा खाते हैं। We forget that as we are growing older, our digestive system is becoming weaker also, so we should restrict our eating habits. Once in a way is okay. घर में संडे का कुछ खास बनाया है खाना या कुछ और किया है तो ठीक है, but otherwise slow down. So बाकी दिनों में सात्विक खाना जहां तक हो सके, राजसिक और तामसिक छुट्टियों के दिनों या सेलिब्रेशन टाइम पे खाने के लिए छोड़ दीजिए, because otherwise it is going to affect your health. ये करने से हमारा वात, पित्त और कफ क्लियर हो जाता है। अब कौन कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते? जिन लोगों को अल्सर्स की तकलीफ है, जिन लोगों के पेट से जुड़े कुछ व्याधि है, कोलाइटिस है, IBS सिंड्रोम है, इनफैक्ट IBS सिंड्रोम जिनको है वो लोग ये करेंगे तो उनकी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अगर होता है आपको या लूज मोशन होता है तो ये साफ होने से आपका क्लेंजिंग हो रहा है और आपको आराम मिलने लगेगा। ब्लीडिंग पाइल्स है, ब्लीडिंग अल्सर्स है, वो लोग नहीं करेंगे।
Anybody with severe heart problems, they will not do it. But people who have had any surgery in the last 6 months, less 6 months or less, they will not be doing it. But 6 महीने के पहले अगर आपका कोई सर्जरी हुआ है, it's perfectly okay to do it. Very important, I said, करने जाओगे क्रिया, mentally you have to be relaxed. You have to be prepared to do what you are doing. बाप रे कैसे करूंगा, कितना पानी निकलेगा, नहीं नहीं मुझे, मेरे तो लंग्स बाहर आ जाएंगे, मेरी इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाएंगी, ऑल दोस थिंग डर से करोगे तो पानी नहीं निकलता है. सो वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी वेरी safe process to do it, but after having understood what it is and how it is to be done. 5 things to remember. गुनगुना पानी रखना जरूरी, पीना जरूरी है. Today I don't need गुनगुना पानी because मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और मैं लगातार नहीं करती, कभी कभी करती हूँ, जरूरत पड़ती है तो. शायद मैंने पिछले 6 महीने में किया भी नहीं है, 1 साल के ऊपर हो गया मैंने किया नहीं. बट आप जब शुरू में करते हो, क्योंकि आपको उसमें से फर्क दिखाई देगा, till such time that your system is totally clear and balanced, तो आप करोगे. कैसे करना है, पहले जब करोगे तो 10 दिन लगातार करोगे, then take a break of 1 month, and next time when you are doing it, do it 3 days one after the other. Because अक्सर हमारे शरीर में तकलीफ कब होती है, हमारी रात की नींद पूरी नहीं हुई है, हमारा एसिडिटी बढ़ जाता है. I have had a lot of work pressure, lot of stress I have been taking, हमारा एसिडिटी, ये सब असंतुलित होने लगता है. तब जब आपको महसूस, या फिर कभी हमने बहुत 2-3 दिन लगातार बहुत भारी खाना खाया और हमें ऐसे लग रहा है हमारा पेट अनकंफर्टेबल है, आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, गो अहेड एंड डू इट. करने जिस दिन आप डिसाइड करोगे, अच्छा कल अगर आपको करना है, टुमारो इज सैटरडे, जिनको शुरू करना है प्लीज बाय ऑल मीन्स डू इट टुमारो, डे आफ्टर एंड मंडे. टुमारो आप करने जा रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग योर प्रीवियस नाइट्स डिनर बाय 8-8:30. आप 10 बजे रात को बहुत भारी खाना खाओगे और फिर आप करने जाओगे तो इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल. सो एक तो आदत डाल दीजिए कि 8, 8:30 बजे तक आपका खाना खा लिया. रात का खाना हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, और कल सुबह आप कर सकते हैं. व्हाट आर द 5 थिंग्स टू रिमेंबर? गुनगुना पानी, उसमें नमक डाला हुआ होना चाहिए. आप पानी 4-5 ग्लास पी सकते हो. डू नॉट काउंट द नंबर ऑफ ग्लासेस. आकंठ पीना है, इसका ध्यान रखना है. सो सेकंड पॉइंट, आकंठ पानी पीना है. थर्ड पॉइंट, ये 2 उंगलियों को बेस में डाल के प्रेस करना है, अपने आप निकलेगा. जो लेडीज जिनके हाथ के नाखून की उंगलियों के नाखून बड़े हैं, बी केयरफुल, आइदर यू वांट टू क्लिप योर नेल, डोंट हर्ट योरसेल्फ. अंदर बहुत नाजुक अपने लग सकता है, यू माइट हर्ट योरसेल्फ. कुछ लोगों को पानी निकालने समय थोड़ा सा हल्का खून का लाइन वगैरह दिखता है. डरना नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि आपने जब प्रेस किया होगा आपका लग गया होगा कहीं, तो थोड़ा सा, बट खून नहीं निकलता है, खून नहीं निकलेगा. एज आई टोल्ड यू, जिनको अल्सर्स हैं, ब्लीडिंग अल्सर्स हैं, वो लोग नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज समथिंग व्हेन यू डू इट. चौथा, आफ्टर यू फिनिश डूइंग इट, रिमेंबर टू गार्गल. 3-4 बार आपको गार्गल करना है, क्योंकि यहाँ खराश रह जाती है, बिकॉज यू डोंट नो स्लाइमी वाटर निकला है, पित्त का निकला है, क्या निकला है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट द फोर्थ थिंग, 3-4 बार गार्गल. फिफ्थ थिंग, इमीडिएटली अभी निकाल दिया मैंने तो चलो जाके कॉफी और चाय पी लो, नहीं. वेट फॉर 10 मिनट, जस्ट सिट डाउन ऑन द चेयर, ऑन द बेड, ऑन द, सो मत जाना थोड़ा सा, बिकॉज आप पहली बार अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ऐसे ड्रेन्ड आउट जैसा फील होएगा, बट ड्रेन्ड आउट नहीं होगा, थोड़ा थकान जैसे होगा, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो. दूसरे दिन तीसरे दिन में आप माहिर हो जाओगे. That first and second day, if you're doing it for the first time, थोड़ा सा लगेगा, but you will see that कैसा हल्का लग रहा है. ओके, ये 5 चीजों का ध्यान रखना है. अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि पहले हम चाय पी सकते हैं क्या? सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना होता है, टॉयलेट जाना होता है, चाय नहीं पीऊंगा तो मुझे टॉयलेट नहीं होता है. तो उन लोगों के लिए यस, यू कैन ड्रिंक योर टी, गो, बिकॉज यू वांट टू क्लियर योर बाउल्स. आप टॉयलेट वगैरह का प्रोग्राम खत्म करो, उसके बाद जलधौती करो, क्योंकि आपको अगर आदत है सुबह जाने की, आप नहीं गए और जलधौती करे और उसको करते समय आपको रश करना पड़ा, तो ठीक नहीं रहेगा. इसके लिए पहले आप टॉयलेट का काम कर लो
और फिर आप कर सकते। अब पानी तो आपने चाय पी ली है, कोई बात नहीं है, जब आप धौती करोगे चाय बाहर निकल के आएगी। ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन। तो आपको प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, 8:30 बजे तक के खाना खा लेना है, हल्का फुल्का खाना खाना है, पानी गर्म रखना है, दैट इज योर प्रिपरेशन। एंड नाश्ता आप 10-15 मिनट बाद कर सकते हैं। जो लोग आप प्रैक्टिस आपके जो योगिक प्रैक्टिस कर रहे हो वो लोग इसके बाद अपना ब्रीदिंग और योगा के क्लासेस वगैरह कर सकते हैं। योगा का अगर आपका रूटीन ऑलरेडी है कि नाश्ता के पहले मैं अपना 15 मिनट या आधा घंटे का योगा करता हूँ, तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। All right, so with this I feel there may not be more questions. So Dr. Saha, if you have raised your hand quickly, if you want to ask something, let me answer your question. Madam, when we do yoga, we say that take more water. In the morning, take 1 liter of water. But about some percentage of population are having glaucoma, and glaucoma has no symptoms, so they will not be knowing. So this 1 liter of water, without knowing that having glaucoma or not, may damage the optic nerve more. So this is just a caution that at one go, 1 liter water may not be good for our age group people unless they have checked that they don't have glaucoma. Yeah, That's the so only we are not reminder. yeah, Dr. Saha, thank you for that information. Here we are doing the dhoti. We are not doing the hydrotherapy or something that we are absorbing the water. Okay, we are drinking and we are flushing it out. So it's perfectly okay. इसके लिए And आकंठ पीना है जितना आप पी सकते हो, क्योंकि उसको हमें बाहर निकालना है। All right. one more point about the salt, that 1 teaspoon may be a little more. Like when you are given this saline, which is 0.9%, 9.9 grams, so it can 5 gram or so in a 100 ml will be adequate. Thank Yeah. you, ma'am. So thank you. So again I would like to mention that we are flushing this out. So अगर आपने पतीला भर पानी गर्म किया है तो 1 heaped teaspoon is perfectly okay because it spreads out, because आप पी के उसको बाहर ही निकाल रहे हो. But there have been questions, now Dr. Saha mentioned this, but there also have been questions from people कि मैं blood pressure है मुझे तो मैं लूं क्या salt. तो my answer to them is अगर खाने में आप salt ले रहे हो तो इसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं, because you are only bringing it out, you're not drinking that salt water. Okay, and he's talked about the saline हमारे जब देते हैं हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, ये हमने बाहर निकालना है. तो इसके लिए आप 1 टीस्पून इतने बड़े पतीले में 1 heaped teaspoon डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्प्रेड आउट हो जाता है. Thank you very much, Dr. Saha. We will move on. And I suppose we do not have more questions. I want to just explain the Tratak and then quickly touch upon the other two, because we have just about 10 minutes left. Now Tratak में क्या करना है, बिंदु त्राटक. अच्छा, यहाँ पे धोती में एक और, ये वस्त्र धोती जैसे मैंने बताया मलमल का, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा हम लोग का ये 6 फुट का मलमल का रहता है. उसको अगेन भिगो के रखते हैं, पूरा और नरम करते हैं और उसको चबाते रहते हैं and again it is pulled out. So you and me do not do that. I have not done this, but yes, I have done this. Yes, when I was doing my many years back, when I was giving my exams and all, we had to show the practical and all that. So I had done this for my exam, but I am not practicing it and I don't advocate it also. But this is just for your information. पुराने जमाने के लोग, my husband's बड़े चाचा, the ताऊ जी सबसे बड़े, वो करते थे. Even at the age of 83, I have seen him doing वस्त्र धोती. So he was doing it, but we don't need to do that. Again, it's balancing of it. वाग धोती is the word, if you have heard. जिनको हाइपर एसिडिटी है वो लोग खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, 1.5 या 2 घंटे बाद पानी पीकर निकालेंगे. उन लोगों का एक्चुअली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकलता है. The bitterish, the sour, the bilious kind of food comes out. हाइपर एसिडिटी वालों के लिए है. Again, only for information. Moving on, त्राटक हमारे आंखों के लिए है, ये कर रहे हैं हम. ज्योति त्राटक और बिंदु त्राटक, 2 प्रकार के त्राटक हैं.
हम अभी जब बैठे हैं तो एक शून्य को देख के, एनी शून्य या एनी स्पॉट को देख के एक टक जब हम विदाउट ब्लिंकिंग आवर आईज, व्हेन वी कीप ऑब्जर्विंग दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टिल योर आईज आर ब्लिंकिंग, तब तक अगर आप कर सकते हो तो wait, continue to gaze there till your eyes are filled with water. ओके कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो आप और उसको देखते रहो, स्टेडी गेजिंग कंटिन्यूअसली। ऐसे देखते रहेंगे, आपकी आंखें भर आएंगी, एंड देन व्हेन यू फील अभी और नहीं मैं खुला रख सकती हूँ आपको, तो थोड़ा सा ब्लिंक करके उसको बंद करना है। बंद करेंगे तो जो आंखें आपकी भर गई थी, योर ड्रॉप्स टीयर्स विल रोल आउट, वार्म टीयर्स, you'll actually feel them on your cheek. How long you have to keep your eyes closed? जितना देर आपने वो रेफरेंस पॉइंट को देखने के लिए खुले रखे थे, उतना देर आप आंख बंद करके उस आंसुओं को बहने दीजिए। आंसू बह के खत्म हो जाएंगे तो भी आंखें बंद रखेंगे थोड़ी देर के लिए। सपोजिंग यू हैव गेज्ड फॉर 3 minutes, you will keep your eyes closed for 3 minutes, and then you will slowly, you'll keep a water of cold, a little bowl of cold water next to you, थोड़ा मलमल का रुमाल उसमें रखेंगे या कॉटन स्वैब रखेंगे, और फिर जब आपको खोलना है आंखें, लेफ्ट हाथ के पर रख के राइट हाथ से 2-3 बार उसको राइट आंख को साफ करना है। डू द सेम थिंग विद द अदर आई, क्लोज योर राइट आई एंड वाइप द लेफ्ट आई व्हाइल इट इज क्लोज, क्योंकि घर अंदर से बहुत उष्णता निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है। Another one we advise is to do the ज्योति त्राटक, लैंप लगा के, दिया लगा के उस ज्योति को देखना है। Now this reference point, be it ज्योति or any point, should be clearly visible by your naked eye. अगर मैं चश्मा लगाया हूं तो मैंने चश्मा निकाल के जहां तक मुझे दिखता है वहां देखना है मुझे। That is going to be your distance. तो कुछ लोगों को एकदम 1 फुट पे दिया रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज्योति थोड़ा दूर रखेंगे तो हमें ठीक से नहीं दिखाएगी। कोई बात नहीं, आप अपने पास में रखिए, जहां तक आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है उतना करना है आपको। अगेन ज्योति के लिए भी सेम चीज करना है, देखते रहिए एक टक जब तक आंख में से पानी नहीं निकल जाता है। वेरी गुड फॉर reducing the heat in your body, very good for your concentration and memory. आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जो हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। अब हमारी उम्र 55-65 है, रिवर्सल तो नहीं होगा, बट दिस इज द क्रिया इवन इफ चिल्ड्रन एट होम टुडे can sit and do, because they are studying long hours sitting in front of the TV, in front of the computers, reading and all, तो उनके चश्मे बहुत जल्दी लग जाते हैं। So if there is a child who is a 9-year-old, 10 and 11-year-old, if the चश्मा लग गया है तो उसका आई साइट और डिटीरियोरेट नहीं होगा त्राटक अगर रोज करेंगे तो। पीपल विद साइनसाइटिस ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज उनका ये साइनस पूरा यहाँ से क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। इंटरनल त्राटक इज व्हेन यू फोकस एंड कीप योर गेज, यहाँ पे हम लोग जब ध्यान लगाते हैं तो आंखें बंद करके हम भ्रुकुटी मध्य पर ध्यान देते हैं, दैट इज द आंतरिक त्राटक, internal त्राटक, that also can be done. External त्राटक is what I just showed you. Yes. Okay. Now the last two, I suppose ये तो कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है। Okay. So the quickly last two जो बस्ती और क्या मैंने नौली, बस्ती और नौली के बारे में। Now बस्ती is the sequence which is almost 50% का हमारा जो पेट के रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकता है। लेकिन ये बस्ती स्थल बस्ती है, जल बस्ती है, ये दोनों हम घर पर नहीं कर सकते, हमें पंचकर्म क्रिया के जो रिट्रीट हैं, केंद्र है, वहां जाके करना होता है, बिकॉज दे एक्चुअली मेक यू सिट इन अ टब ऑफ hot water, warm water, and वहां से the water is sucked inside from through your rectum और cleansing होता है। और जल बस्ती और स्थल बस्ती, एंड ऑल्सो लाइक अनीमा देते हैं उस तरह से आपको वो ट्यूब डाल के एयर डाल के उसको साफ करते हैं। So just for your knowledge, in both the techniques, water is drawn in through the anus
into the large intestine and then abdominal muscle, जो मैंने आपको नौली के बारे में बताती हूँ, तो जिनको नौली आती है उनको चर्न करने के लिए बोलते हैं, बट आई सपोज जो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उनको नौली तो आती नहीं होगी, उन्होंने योगा तो किया नहीं होगा, सो उनको वो सिर्फ वो सक करने के लिए कहते हैं, एंड देन दे क्लेंस दैट थिंग. ओके, दीज आर पीपल विद severe abdominal diseases or things, उनको करना पड़ता है. It directly works on the purification of the central organ of the body, जिसको colon बोलते हैं, large intestine, उसका cleansing होता है. And सल बस्ती जल्द बस्ती, unlike enema देते हैं तो खाली rectum का हमारा 8 से 10 इंच की जगह है वो क्लीन होती है हॉस्पिटल में, लेकिन जब ये क्रिया करते हैं तो अंदर तक वो लार्ज इंटेस्टाइन के पूरे भाग में वो सक हो जाता है और क्लेंस हो जाता है. ओके, बिकॉज वो कोलोन हमारा जो है वो एक लार्ज कैनल टाइप का एक ट्यूब होता है. अभी हम आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देंगे. नौली जो बताया मैंने, नौली हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है उसको हम पूरा, हम लोग क्या उसको जो उसको खड़े रह के करते हैं. इफ यू हैव सीन दैट इमेज, आई विल शो यू वन मोर टाइम द इमेज. ओके, I'll just show you something. Again, see, this is one of the advanced techniques of cleansing abdominal. बीच वाला पोर्शन देखा, उसने पूरा abdominal muscles अंदर खींच लिए हैं. Okay, and then left or right ऐसे घुमाएंगे. Now the position of standing is you have to bend a little from your back, not from the waist, from your back. कंधों से झुकना है और दोनों हाथ के का हमें घुटनों के ऊपर ग्रिप ले लेना है, घुटने से थोड़ा ऊपरी से. So you are resting your hands and putting the weight of your torso on the thighs. और उसके बाद हम रेचक करते हैं, सांस को पूरी तरह से बलपूर्वक छोड़ देते हैं बाहर, and then we pull, हमारा तीनों बंद लगा के हम हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को खींच लेते हैं, और फिर उसको हम खींचने के बाद उसको लेफ्ट एंड राइट घुमाते हैं. लेफ्ट घुमाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड का हिप हम लोग ऊंचा हो जाता है, और राइट घुमाते हैं. यू विल बी एबल टू सी इन दिस. एंड लेफ्ट और राइट 4-5 बार करने के बाद एक्चुअली बीच में आके व्हेन यू डू द सेम थिंग इन अ स्पीड, उसको मंथन बोलते हैं. सो पहले 45 डिग्रीज उसको लेफ्ट साइड राइट में लेते हैं, और उसको फिर गोल गोल जब स्पीड में घुमाते हैं तो हम उसको नौली मंथन कहते हैं. वेरी एडवांस्ड टेक्निक, बट जस्ट wanted to touch upon this to so that you know what it is. Now before we close quickly, the benefits तो आपको काफी इसके मिलते ही हैं, but precaution, let's understand the precaution for doing all the Shatakarma. Practice under supervision. Some of the things which I told you, you can do Jaldhoti, Neti and Tratak you can do, but take care of whatever 5 points that I told you. Shatakarma isn't an everyday activity. इसके लिए सिर्फ वो 3 आप रोज कर सकते हैं. It should be practiced weekly or monthly basis, as I told you about Jaldhoti. Use clean and sterile equipment and things that you have to use. Pani, pot, जो भी use कर रहे हो वो clean होना चाहिए. Pregnant women shouldn't be doing all these practices except for Kapalbhati or Jalneti or Tratak. Again, other practices pregnant women will not do it. Lighten your diet. I already told you that you should be eating light. इसके लिए मैंने जब शुरू में बोला था कि अष्टांग योग के जो यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, प्राणायाम करने के पहले आपको जो ये हल्का खाना है वो सब हमारे यम और नियम में आ जाता है. शौच सब जो है अलग अलग हमारे जो यम और नियम है, उसको हम अगर पालन नहीं करते हैं तो हम प्राणायाम के लिए तैयार नहीं होते हैं. सो आस्क योरसेल्फ, आर यू रेडी फॉर दैट? सो वो प्रैक्टिस करना जरूरी है. एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, कीप काम व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस. मन को शांत रखना है, शरीर को रिलैक्स रखना है. इफ एनीबडी वांट्स टू बी मास्टर इन द शट क्रिया, देन मेक श्योर यू डू नॉट हरी इन व्हाटएवर यू डू. बेनिफिट्स, क्लेंजिंग तो बॉडी होती ही है,
आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है, डिजीज फ्री बॉडी हो जाती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाती है, आपका त्रिदोष का बैलेंस हो रहा है, आपकी चैनलाइजिंग ऑफ द फ्लो, जो हमारी नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना, उसका चैनलाइजिंग बहुत अच्छा होता है। योर माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्टिविटी इजी हो जाता है, डिक्रीज एंजाइटी, इम्यून सिस्टम आई टोल्ड यू अच्छा हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और अस्थमा वगैरह जैसी आपकी जो तकलीफें हैं वो सब क्लीन हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा अधिक तो आपका कॉन्स्टिपेशन और पेट से जुड़े प्रॉब्लम आपके कम हो जाने से, वात पित्त और कफ का संतुलन हो जाने से आपके सारे शारीरिक और मानसिक तकलीफ धीरे 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 कम होने लगती है। So with this, thank you very much. I will end the session here, and you have the link. I think Preeti has already given the link for my evenings. You can register yourself, attributes of emotional intelligence, at 5 p.m. today, and you will log into the site. She's given the site. We have WhatsApp and Facebook groups. Please join. Please spread the word around. Yes, thank you. Nice to hear that you people are already talking about it. Thank you. अंजुला जी, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब क्लासेस बहुत अच्छी हैं और बहुत यूजफुल है। थैंक यू। आप अपना फीडबैक भी देते रहिए, आपको जैसे हिंदी में देंगी तो भी चलेगा। आप मैं फीडबैक दे रही हूँ। थैंक यू। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय, एंड see you all in the evening. Thank you, And everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much.